Yes, you are. Okay, great. Here are the code. Actually, the screen is the presentation is there. As soon as you tell me to switch it on, I will switch it on. Okay. Thanks. Memory Subhanallah idea. Esso pensionamo caro Sapa Pado Kalashman servicing for example. Would have sorry Kapan, he said Kapan. Ask किया कैसे? Jay Chinendra. Nathan, you're doing the recording now. Just ensure that when the presentation is there, the presentation gets recorded and not my face. And somehow there's an echo. Yes, I'll do that. But yeah, I know it is echoing. I don't know why. Everybody, please mute yourselves, please. नेतल यदि एक रूम के अंदर दो systems है ना, then also the echo happens. I don't know all these technical things, but echo is happening. Okay, the echo is not happening now. Very good. I think leave it at that. Okay, let's start. हम लोग ज्ञानावर्णी कर्म कर रहे थे, तो लास्ट ज्ञानावर्णी कर्म जितना मैंने पढ़ाया है द कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर जो सवाल एक खड़ा हुआ था जिसको किसी ने लास्ट मोमेंट पे बोला कि हमको मल्टीटास्किंग के ऊपर कोई क्वेश्चन था. हु वाज दैट पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ओके, कैन यू मतलब वापस ये सवाल पूछिए अपना. नहीं होगा तो मैंने जो मल्टीटास्किंग पे मैटर था मैंने वो प्रिपेयर किया है. आई जस्ट गिव यू दैट. Does anybody who was that person still there? Okay, so I'm assuming that I'm talking on multitasking कि जैन धर्म मल्टीटास्किंग को कैसे देखता है. जैनी जो आज मैं क्लास करने वाली हूँ वो voice is cracking. Your voice is cracking. Your voice is cracking. I need another headphones. That is not the headphones fault, it is the internet's fault. So give me your input. My internet will crack more. The voice is cracking. Huh? What is happening? Voice is cracking. No, it's not cracking. Maybe जिसके लिए क्रैक हो रहा है आपके maybe Take that out. इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, but it is not cracking. Take that out. Okay, if it cracks further, just let me know. Okay. If it's cracking, use this. No, there is a No, it's not cracking. It's just fine. आशिमनी This is happening. एक्चुअली इको हो रहा है. हाँ या इट्स एकोइंग. आई थिंक एक बार प्लीज़ सब अपना म्यूट चेक कर लीजिए ना. और कभी कभी कोई एक डिवाइस से 2 बार लॉग ऑन हो जाता है ना तो भी इको होता है. कैन एवरीबडी जस्ट चेक कि कोई 2 इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं लॉग इन किया हुआ है ना किसी ने. एक कमरे में दो सिस्टम से लॉगिन मत करिए. यदि आपने मोबाइल किया हुआ है तो लैपटॉप से मतलब दो एक ही कमरे मत करिए. यू सेपरेट द रूम. Okay, I hope the echo is not happening now. मैंने यदि कभी भी नंदी सूत्र लेवल पे ज्ञानावर्णी कर्म बेसिक्स की क्लासेस में कभी नहीं पढ़ाया है. I would have taught this much later on. But for the first time, what am I doing is I'm teaching you at a Nandi Sutra level. Is the voice still cracking? Let's see presentation. Is the voice still cracking? No. Yes. Okay. Yes. Okay. No, it's not cracking at all, but it's just echoing. Echo. Everybody just mute yourself, no, and just see there's no 2 things there because it is just echoing. That's it. That's right.
Okay, am I audible? Am I audible now? Yeah. Okay. ठीक है, दिनांशी वो स्क्रीन पे कर दो. Someone is presenting. Yes, Sarla Mini is presenting. Please stop the presentation because I need to make a presentation. Sarla Mini is presenting. Please, you have to stop the presentation. ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर दो. राहुल मैं दिख रही हूँ, मैं दिखना नहीं. कौन सा चालू कर. Okay. Okay. तो सब लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंटेशन? Does everybody, सबको दिखाई दे रहा है? ऊपर पे आज ज्ञान लिखे हैं, मति ज्ञान, कृत ज्ञान. Okay. So why I have given you this chart is नंदी सूत्र is talking detailed 5 ज्ञान के विषय के अंदर बहुत डिटेल में है. So this ज्ञान is so much in detail like which पूरा नंदी सूत्र can be understood with this way. Okay. So मैं इसमें से आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना मुझे जरूरत है बताना. I'm not going to go too much in detail. मैंने अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को बिल्कुल अलग कर दिया है क्योंकि उसका एप्लीकेशन सिखा के कोई फायदा नहीं है आपको और मुझे. अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है. लेट्स नॉट डिस्कस देम. पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है. सो उसके डायनेमिक्स आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. ठीक है. मैंने आपको बेसिक्स की क्लास में सिखाया था मति ज्ञान क्या करता है. 5 इंद्रियां और मन, मतलब 6 थिंग्स. 5 इंद्रियां क्या होती है? स्पर्श, मुंह, नाक, आंख, कान, ये इंद्रियां हैं. इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. मतलब ये 6 चीजों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूं मैं और करके आत्मा को मिलती है. आत्मा उसको प्रोसेस करती है उस डेटा को. ओके. एक उस डेटा को जब वो प्रोसेस करती है, दैट होल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज मति ज्ञान. मतलब इंद्रियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पूरा उस पे चिंतन मनन करके उसको एक नतीजे पे पहुंचना वो मति ज्ञान है. और जब हमको वो चीज समझ में आ जाती है जो चीज हम कर रहे हैं तो वो श्रुत ज्ञान बन जाती है जो राइट साइड में है. ओके. सो देखिए ये मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है. ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं है. आई होप सो. इस क्लास के अंदर प्लीज यदि आपको कोई उस वक्त समझना है तो पूछ लेना, पर प्लीज कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत पूछेगा. लेट मी डू द होल प्रेजेंटेशन. ओके. सो 2 चीजें हैं. मति ज्ञान. दिव्यांशी, समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके. मति ज्ञान इज दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. ओके. एंड जब समझ आ जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है. लेट अस सी कि इंफॉर्मेशन कैसे, ये दोनों चीजें कैसे हो रही है, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. मति ज्ञान जो होता है वो 2 तरीके का होता है, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित. श्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार की वजह से. देखो जो रेड कलर का मैंने कहीं भी लिखा हुआ है ना, वो उसका ट्रांसलेशन है, वो उसका मीनिंग है. और ये जो श्रुत निश्रित, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये बेसिकली टेक्निकल भाषा है जो आगम के अंदर ये बोला जाता है. तो आगम के अक्षर हमको जब समझ में नहीं आते हैं तो ट्रांसलेशन मैंने रेड पेन में अपने हेल्प के लिए, मतलब समझने के लिए लिखा हुआ है. श्रुत निश्चित का मतलब होता है कि पूर्व भव के संस्कार की वजह से. तो बटना चला एक, यदि पूर्व भव के संस्कार की वजह से इंफॉर्मेशन मेरे को मिल और दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है अश्रुत से, मतलब पूर्व भव के संस्कार उसमें नहीं है, मतलब पास्ट में मैंने उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब आई डोंट नो what to refer in the past for that information. Okay. तो ये अश्रुत निश्चित में है. हम पहले श्रुत निश्चित को ही देखते हैं. श्रुत के पास्ट के इंफॉर्मेशन की वजह से हम कैसे एक चीज सीखते हैं. श्रुत निश्चित में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी. पहला है अवग्रह, फिर है ईहा, फिर है अवाय, फिर है धारणा. अवग्रह का मतलब क्या होता है? अवग्रह, इसका मीनिंग है ये कुछ है.
मतलब पहली बार जब इंफॉर्मेशन से हम कांटेक्ट करता मतलब मुंह के अंदर टच हो रहा है थिंग्स कि ये पता लगता है कि ये चीज का क्या टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, व्हाटएवर, राइट। तो ये जो चीजें हैं, जो फर्स्ट कांटेक्ट, जब पुद्गल का फर्स्ट कांटेक्ट होता है, इज नोन एज व्यंजन अवग्रह। ओके, ये वाला देखो, इसके नीचे मैंने लिखा है माइनस चक्षु माइनस मन। माइनस मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये आंख और मन से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आंख के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज पुद्गल ग्रहण नहीं होते हैं इनके आंखों में। आंखों से जब मैं देखती हूँ ना, तो आई डोंट कलेक्ट एनी मैटर, आई जस्ट सी। नाक में पुद्गल होते हैं, स्मेल के परफ्यूम जाते हैं, कान में साउंड की जाती है, मुंह में खाना जाता है और स्पर्श के अंदर टच होता है। बट चक्षु और मन में कुछ मैटर नहीं जाता है, इसीलिए व्यंजन अवग्रह के अंदर चक्षु और मन इज नॉट इंक्लूडेड। इज दैट क्लियर? तो ये सिर्फ 4 चीजों से होता है। अवग्रह का अर्थावग्रह का मतलब ये होता है बोध ज्ञान। बोध के ज्ञान का मतलब आई हैव ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है। ये पहला कांटेक्ट था, मतलब इंफॉर्मेशन गई थी मेरे कान के अंदर, बट अभी मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, ये 5 इंद्रियों और 6 मन से होती है। मन को यहाँ पे 9, द 6 नंबर का 9 इंद्रियों में लिया गया है। 9 इंद्रिय मीन्स मन, समझ लीजिएगा। ओके, तो ये 6 चीजों से होती है। इसमें मैंने अर्थावग्रह में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और ठीक, तो अवग्रह मेरा हो गया। ओके, आर वी क्लियर? जब अवग्रह आत्मा कर लेती है तो क्या करती है? वो ईहा करती है। ओके, ईहा का मतलब होता है, ईहा का मतलब है, हिंदी में लिखा हुआ है धर्म विषयक विचारणा। मतलब धर्म मतलब नॉट रिलीजन समझना, एनीथिंग पे मैं विचार करती हूं कि ये क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज हैपनिंग। तो इस पे जब एनालिसिस मैं चालू करती हूं, इज नोन एज ईहा। बट नेचुरल है, ये भी 5 इंद्रियों और मन से होता है। Don't worry, this is not difficult. इसका application I'll start within 2-3 minutes. You'll thoroughly enjoy that. Okay? It's not heavy duty at all. अवग्रह का मतलब होता है धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान। मतलब now I have figured out what is actually happening. तो निश्चयात्मक ज्ञान मतलब मुझे समझ में आ गया है क्या है। That is known as अवाय। Okay? The last one is धारणा, means memory. Okay? Let us take an example कि ये मैंने क्यों बोला है। Let us take an example. मैं इस कमरे में बैठी हुई हूं और किचन के अंदर मेरे को आवाज, कानों से आवाज सुनाई देती है कि कुछ गिर गया, राइट? मुझे पहले कांटेक्ट में मेरे पुद्गल, मतलब जो साउंड के मॉलिक्यूल्स मेरे कान में आते हैं। ओके, तो वो व्यंजन अवग्रह हो, मतलब वो पूरा अवग्रह में समझ लो कि मुझे पता लगता है कि कुछ गिरा है। ओके, फिर मैं उस पर चिंतन करती हूं, मैं क्या गिरा है, मतलब व्हाट हैज फॉलन डाउन। ओके, तो उस पर मैं चिंतन करती हूं, क्या चांदी का ग्लास गिरा है, क्या स्टील का ग्लास गिरा है, कि कांच का ग्लास गिरा है। जो गिरा भी है तो क्या भरा हुआ ग्लास था, कि आधा ग्लास था, कि खाली ग्लास था। आई मीन आई कैन फिगर इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ साउंड। ओके, और जब मुझे वो समझ में आ जाता है, दैट बिकम्स अ व्हाई। ओके, और मैं उसको
जब समझ में आ जाता है, चाहे वो मैं मेमोरी से निकालती हूँ या मेमोरी में डाल देती हूँ कि अरे ये तो ग्लास गिरा, मतलब समझ में आ गया कि अरे ये तो किचन में ग्लास गिरा था जो चांदी का था और बस चीजें स्पिल हो गई है, लेकिन वो टूटा नहीं है, तो वो हो गया अवाय। धारणा बिकम्स, नाउ इट इज देयर इन मेमोरी कि यार जब चांदी का ग्लास भरा हुआ गिरता है तो वो ऐसे साउंड करता है, ये मेमोरी हो गई। आर वी क्लियर? इसको मैं फिर से एक और एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए अभी अचानक मेरे को परफ्यूम की स्मेल आई, जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, दरवाजे के बाहर से कोई गया, परफ्यूम की स्मेल आई, राइट? तो मुझे से लगता है कि यानी नाक में फुदकल गए एंड आई एम कलेक्टिंग द डेटा, दैट इज अवग्रह। ओके, नेक्स्ट है यहा, मतलब मैं सोचती हूँ ये परफ्यूम की स्मेल अचानक क्यों आई, जनरली तो नहीं आती है, व्हाट हैपेंड, राइट? देन आई रियलाइज्ड ओ अच्छा, somebody was supposed to come, right? Okay, who was supposed to come? अच्छा वो, अच्छा I know that person always puts perfume, right? ये चीज सुन के मैं जब मैं डिसाइड कर वो यहाँ हुआ, और जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन आया कौन नहीं आया, वो अवाय हो जाता है। अवाय मतलब आई हैव फिगर्ड इट आउट कि मेरा गेस्ट आया था, मैंने उसको बुलाया था और ऑल दोस थिंग्स, राइट? और वो आदमी के बारे में आई फॉर्म ऑफ थिंग्स कि जब वो आते हैं हमारे घर में, दे पुट परफ्यूम एंड एवरीथिंग, दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ओके, सो मैंने 2 एग्जांपल से बता दिया कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। धारणा भी है, वो 5 इंद्रियों और मन से होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आप देखो, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, धारणेंद्रिय, ये सब लिखा हुआ है। 2 एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आ गया कि अवग्र, इहा, अवाय, धारणा क्या होता है, ये समझ में आ गया? आर वी क्लियर, राइट? लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। किचन में कुछ चीज गिरी, राइट? ग्लास गिरा, मुझे ये भी पता लगा कुछ स्पिल हुआ, बट मैंने जब ये सोच रही हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि यार ये क्या गिरा, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ ऐसा मेटल गिरा जो मैंने मेमोरी में पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मतलब पूर्व भव, याद है मैंने आपको बोला ये श्रुत निश्रित है, मतलब पूर्व भव के संस्कार की वजह से है। पूर्व में मैंने चांदी के ग्लास की गिरने की आवाज सुनी हुई है, और मुझे पता है कि चांदी का ग्लास गिरता है, खाली गिरता है तो कैसे साउंड आता है, भरा हुआ गिरता है तो कैसे साउंड आता है, और यदि वो चांदी का नहीं हो कि कांच का ग्लास गिरेगा तो क्या आवाज आएगी, राइट? और क्या सिनेरियोस होगा, ये मेरी पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो यानी मेमोरी में मेरा है। तो पूर्व भव के जो संस्कार है इज हेल्पिंग मी प्रोसेस द डेटा। अरे 10 साल पहले मैंने कांच का ग्लास तोड़ा था ना, तो वो उसकी ऐसी आवाज थी, राइट? आई फिगर्ड इट आउट। ओके, तो ये सारी चीजें जो ये मुझे ये पूर्व भव के संस्कारों की वजह से मुझे एक्सपीरियंस है। बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जिसमें मेरे पूर्व भव के संस्कार का नॉलेज ही नहीं है? जैसे कोई ग्लास गिरा तो मुझे साउंड से लग रहा है कि ये तो चांदी का भी नहीं है, ये कांच का भी नहीं लगता, ये स्टील का भी नहीं लगता, व्हाट फेल डाउन? ये पतीले गिरने की भी आवाज नहीं लगती, ये क्या गिरा होगा? आई मीन आई डोंट नो, एक चम्मच का भी आवाज नहीं लगा, समथिंग वियर्ड, राइट? इसका मतलब मैंने ये पूर्व में इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं टू रिलाई। किस डेटा पे मैं रिलाई करूंगी कि ये क्या चीज हुई? मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है कि मान लो कोई न्यू गेस्ट आया, राइट? और वो क्या करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। देयर आर सम पीपल जो 2 घंटी बजाते हैं, देयर आर सम पीपल जो धीरे से घंटी बजाते हैं, सबकी अलग अलग। आई कम टू नो, अरे 10 बजे, अरे 10 बजे तो मेरी मेड आती है, नहीं अरे ये तो 12 बज गए, अरे इस टाइम तो ये आदमी आता है। लाइक यू नो, आई डू कम टू नो विद पूर्व भव के संस्कार, पूर्व में ऐसा हुआ है। बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जिसमें पूर्व भव के संस्कार नहीं होते हैं? उसमें अश्रुत निश्चित से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट आर दे? ओके, लेट अभी ये बताइए, श्रुत निश्चित में किसी को डाउट है? इफ देयर इज एनीबडी प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए, सिर्फ श्रुत निश्चित में। या मुझे पूछना था ये व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह में मेरे को एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों में, कैसे मतलब? Okay, जैसे कुछ okay. गिरा तब नहीं, मैं नहीं, कुछ गिरा, and then what is the both? Okay, I'll tell you what, ये जो चीज है ना, नंदी सूत्र इज अ वेरी एडवांस लेवल, वेरी वेरी एडवांस। I should not be teaching you in basics class, okay? This is a very basic class. बट मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा ना, आपको जिंदगी में कभी 90% of your problems get solved if you can figure this out.
तो आपको यदि दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, फेयर इनफ, आप उसको अवग्रह के अंदर कैटेगरी में डालो, क्योंकि व्यंजन अवग्रह इज जस्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट। यदि मैं आपको बोलूं ये एक समय का होता है कि जिसमें फर्स्ट पुद्गल टच होता है, मतलब द टच डाउन ऑफ फर्स्ट वन पुद्गल, आप बोलोगे पुद्गल ही नहीं पता है क्या है, आपको ये भी नहीं पता है एक मॉलिक्यूल टच करने से क्या होता है, क्योंकि जब आप आगे साइंस पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कान में आवाज तभी सुनाई देगी जब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, जब कान में भर जाता है मॉलिक्यूल से। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट के अंदर पूरी भाषा मुझे नहीं समझ में आता। इफ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ स्मेल गोज इन माई माउथ, मुझे इन माई नोज, मुझे नहीं पता लगेगा व्हाट इज क्या स्मेल है, राइट, अनलेस माई होल नोज के अंदर इज फिल्ड विद अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज व्यंजन अवग्रह, ओके, द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, that is I'm trying to differentiate for your benefit, okay, but अभी भी नहीं समझ में आता है, drop it, just look at the अवग्रह picture। अवग्रह का मतलब होता है कुछ है, मतलब the first contact is known as अवग्रह। Are you clear? So व्यंजन okay, व्यंजन अवग्रह means the first contact of the first पुद्गल जो just touch down होता है is known as व्यंजन अवग्रह, okay। क्योंकि जब मैं सेकेंड कर्म करवाऊंगी आपको दर्शनावर्णी कर्म, तब मैं आपको बोलूंगी इसके पहले भी मतलब ये जो अवग्रह के पहले दर्शन होता है, राइट, विच ऑलमोस्ट इज लाइक व्यंजन अवग्रह, तब तुम और कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट एम आई सेइंग, देयर इज समथिंग व्हिच कम्स इवन बिफोर दिस, ओके, दैट इज दर्शन। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट, understand this is the primary touch, the first touch of the information। इंद्रिय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए the first समय में जो चीज ऑपरेट होती है is अवग्रह। Are you clear? Okay, okay, Yeah. so okay, and जब चीजें काफी accumulate हो जाती हैं then it becomes अवग्रह, अर्थ अवग्रह, okay। So any more differentiations in this? मैं आपको एक चीज बताती हूं, अभी इसका मैं एप्लीकेशंस आपको बताती हूं कि ये मैंने मल्टीटास्किंग के अंदर क्यों सिखाया आपको। आपको पता है, आपको लग रहा है कि आप भी यहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठी हूं, वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर, राइट। डू यू नो माय बॉडी, माय आत्मा कितनी चीजों पे अवग्रह यहां अवाय धारणा कर रहा है, आपको पता है? जस्ट गेस, टेक अ वाइल्ड गेस, कितनी चीजों को प्रोसेस कर रहा है आपकी आत्मा, अभी क्या प्रोसेस कर रही है, मतलब अवग्रह यह अवाय धारणा किस चीज पे कर रही है? आप जस्ट गिव मी आंसर, एनीबडी, जिसको प्लीज नंदी सूत्र तक मति ज्ञान आता है, प्लीज यू डोंट आंसर, वो लोग आंसर मत करिए। अवग्रह एंड जो मतलब यह सब उस पे हम लोग का ध्यान है अभी कि व्हाट यू आर सेइंग क्या समझ। ओके, सो आपके हिसाब से आप जो मेरे को सुन रहे हो, राइट, विद योर ईयर्स, या राइट, सो इस लैपटॉप की वजह से आपके जो कानों के अंदर जो भाषा के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं इन योर ईयर्स, आप बोल रहे हो कि मैं उस चीज पे अवग्रह यहाँ अवाय धारणा कर रही हूं, आपको लग रहा है। आर यू क्लियर? राइट, एंड विच इज टोटली ट्रू, विच इज 100% ट्रू। बट आपको एक चीज और नहीं पता है कि आपकी आत्मा प्रति समय और किन किन चीजों पे अवग्रह यह अवाय धारणा कर रही है। लेट मी स्टार्ट टेलिंग यू थिंग्स, ओके। आपको पता है दरवाजा खुल रहा है कि बंद हो रहा है, इफ समबडी कम्स, योर आत्मा इज प्रोसेसिंग दैट डेटा ऑल्सो। यदि इस कमरे के अंदर दूसरी कोई आवाजें हो रही है, योर आत्मा इज प्रोसेसिंग दैट डेटा ऑल्सो। प्रोसेसिंग मतलब अवग्रह यह अवाय धारणा उस पर हो रही है। एक हवा का ठंडा झोंका आता है, माय आत्मा इज प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ओके। फिर तो मुझे ठंडी लगती है, यदि मुझे अचानक प्यास लगती है, जैसे मेरा मुंह सूख रहा है, तो दैट ऑल्सो इंफॉर्मेशन माय आत्मा इज प्रोसेसिंग। और अचानक मेरे को लगता है यार, एक थॉट आता है यार पानी पी लेना, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कम्स। सो वो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है। यदि मैं घबरा रही हूँ, लाइक आई एम टॉकिंग, तो मेरे को थोड़ी एंजाइटी हो जाती है कभी कभी, यू नो, लाइक व्हेन यू स्पीकिंग एंड यू नो हो जाता है, तो वो जो घबराहट होती है, चाहे वो जितनी भी होती है, दैट थिंग ऑल्सो आत्मा इज मॉनिटरिंग, मतलब उस पर भी वो अवग्रह यह अवाय धारणा कर रही है, ओके। और कितनी चीजों पे कर रही है? दिस, नोज, स्पर्श, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड, सब पे कर रही है। यदि अचानक अभी मुझे स्मेल जलने की आती है, मतलब किचन में कोई खाना बना रहा था, माय डॉटर वाज कुकिंग फूड, और उसने कुछ चीज जला दी, और वो जलने की स्मेल यदि मेरे को आएगी,
मेरे को अचानक मेरा ध्यान जाएगा कि आई थिंक सम मतलब आई लुक देयर एंड से बेटा मुझे लग रहा है तुमने गैस पे कुछ चीज जला दी है, राइट? बिकॉज दिस थिंग इज ऑल योर इंद्रिय कभी रुकती नहीं है। मतलब ये आत्मा जो होती है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट और प्रोसेसिंग, ये जो प्रोसेस जब मैं बोलूँ ना वर्ड समझ जाना, अवग्र यह अवय धारणा, ये कॉन्स्टेंटली कर रही है आत्मा, ये रुकती ही नहीं है। अरे तुम सो जाते हो ना, लाइक इफ आई स्लीप ऑफ इन द मिडल ऑफ अ नाइट, रात के 2 बजे, राइट? यदि लाइट चली जाती है, कभी होता है कि पंखा बंद हो गया गर्मी के टाइम पे, तो मैं पसीने से लथपथ हो जाती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। इसका मतलब आत्मा वॉज प्रोसेसिंग डेटा कि यार पसीना क्यों आ रहा है, समथिंग इज अबनॉर्मल, और मेरी नींद खुल जाती है। और विंटर्स में मैं सो रही होती हूँ, किसी वजह से ज्यादा ठंडी हो गई, चाहे दरवाजा खुला रह गया, चाहे मैं मेरे ऊपर से रजाई मैंने कभी निकाल दी और मुझे ठंडी लगती है, आत्मा मतलब मैं अचानक उठ जाती हूँ। क्यों? आत्मा वॉज प्रोसेसिंग द डेटा ऑफ मेंटेनिंग अ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर टॉलरेबल जोन से बाहर चला गया, चाहे गर्मी ज्यादा लगी चाहे ठंडी ज्यादा लगी, मेरे को उठा देता है, मतलब मेरी आत्मा उठ जाती है एंड सेज व्हाट द हेल, डू समथिंग अबाउट इट, राइट? आधी रात को सोई हुई थोड़ी आहट भी होती है, दरवाजा खुलता है, हमारी नींद खुल जाती है। आधी नींद को देयर आर पीपल हु वेक अप बिकॉज दे वांट टू गो टू द लू, राइट? क्यों? क्योंकि लीवर किडनी के अंदर इफ इट वांट्स टू, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विड, इफ इट वांट्स टू सीक्रेट, इंफॉर्मेशन जा रही है कि बॉस द ब्लैडर इज फुल, प्लीज गेट अप, राइट? कई बार हम इसलिए भी उठ जाते हैं क्योंकि हमको पेट दर्द कर रहा है, राइट? या सर यानी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई तो पेट दर्द करते करते लोग उठ जाते हैं, या चेस्ट में पेन होती है तो लोग उठ जाते हैं। इसका मतलब सोते हुए भी आत्मा अवग्र इह अवय धारणा कर रही है, बंद नहीं करती। आपको लग रहा है आप सो गए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, भैया आत्मा स्टिल ऑन, आत्मा इज नॉट शटिंग डाउन, आत्मा कभी भी शट डाउन नहीं करती, राइट? तो ये सारी एग्जाम्पल से आपको क्या रियलाइज हुआ कि प्रति समय आत्मा अनंत, द वर्ड इज अनंत चीजों पे अवग्र इह अवय धारणा कर रही है, इस प्रोसेसिंग अनंत थिंग्स पे प्रोसेस कर रही है डेटा को, ओके? हाँ, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो पूरी धारणा तक नहीं जाती, पूरी शुद्ध ज्ञान तक नहीं जाती है, वो अवग्रह करती है। और यह जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही है, दैट इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रही है वो सिर्फ अवग्रह यह किया और उसके बाद वो रुक गई, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? कोई और रोड पे कोई बस जा रही है या ट्राम जा रही है, उसमें उसने सिर्फ अवग्रह यह धारणा की, मतलब अवग्रह यह और अवाय किया, धारणा तक नहीं पहुंची है। कोई और इशू पे सिर्फ अवग्रह किया, मतलब जरूरी नहीं है कि द होल प्रोसेस गोज, कई चीज सिर्फ अवग्रह तक ही होती है, कई चीजें अवग्रह यह अवाय धारणा एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू शुद्ध ज्ञान, इस पूरा रोल को क्वालिफाई करती है। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम पूरी नहीं सुनते हैं, प्रोसेस ऑफ द डेटा बिकम्स हाफ और आत्मा उसको हटा देती है कि यार इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हटो हटो। ओनली इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड आत्मा उस चीज को पे वर्क करके उसको पूरा प्रोसेस करती है और शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट करती है। आर यू क्लियर? Why I told the whole theory of अवग्र इह अवय धारणा टू टेल यू कि हर बार आगम्स में लिखा जाता है, महाराज साहब भी बोलते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है। और मैं हमेशा सोचती थी व्हाट डू यू मीन बाय आत्मा में अनंत शक्ति है? मेरे को तो कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। आई मीन वेयर इज द पावर? आई मीन अनंत शक्ति है। दिस इज वेयर व्हेन यू अंडरस्टैंड मति शुद्ध ज्ञान, यू रियलाइज कि आत्मा नेवर स्लीप्स, आत्मा प्रति समय अनंत चीजों को प्रोसेस कर रही है। यदि उसको तुमको रिमाइंड करना होता है कि नहीं 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 ये प्रॉब्लम आई, तब वो आपको हाईलाइट करती है, वो पूरा शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट करके आपको बोलती है प्लीज दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। अदरवाइज वो थोड़ा प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन को हटा भी देती है। आई मीन यू डोंट इवन गेट बॉदर्ड, ओके? प्रति समय अनंत चीजों पे आत्मा प्रोसेस स्टार्ट जरूर कर, मतलब द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा स्टार्ट जरूर होता है, चाहे इट गोज टिल शुद्ध ज्ञान इज नॉट, मतलब सब चीजों पे नहीं भी होता है। आर यू क्लियर? तो इससे कभी बैठ के सोचो कि आत्मा में कितनी अनंत शक्ति रही हुई है, कितनी 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 अनंत शक्ति रही हुई है, राइट? बिकॉज माई आत्मा कैन प्रोसेस सो मच डेटा। नाउ रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू कि आपने एक भी इंद्रिय
बंद कर दिए, जैसे कान बंद कर दिए या किसी वजह से आंखें बंद, आप अंधे हो, बहरे हो या बड़े इंद्रियां नहीं है, तो प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्शन बिकम्स स्लगिश, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पर यहाँ पे आपने मल्टीटास्किंग वाला क्वेश्चन जो पूछा था ना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आत्मा एनीवे इज डूइंग मल्टीटास्किंग ऑन इनफाइनाइट थिंग्स इट इज डूइंग, राइट? बट मुख्यता जो फोकस है वो एक चीज पे होती है, राइट? आई हैव नॉट टॉट यू द वर्ड उपयोग, आई हैव नॉट टॉट यू द वर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, कि इवन दो आत्मा अवग्र यह धारणा कर रही है अनंत चीजों पे, फिर भी मेन कॉन्सेंट्रेशन वो एक चीज पे करती है या मैक्सिमम दो चीज पे करती है। हम यदि पुश करें अपने सिस्टम को, तो वो मेजर कॉन्सेंट्रेशन 2, 3, 4, 5 चीजों पे भी कर लेती है, विच इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ओके, जैसे आप अभी बहुत अच्छे से सुन रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग वन टास्क। यदि आपके पास दूसरा काम आ जाता है, लाइक इफ योर डॉटर कम्स एंड सेज कि मम्मी मुझे खाना दो, तो आपको किचन में जाके खाना भी बना रहे हो और आप अभी ये क्लास भी कर रहे हो, तो बट नेचुरल है, दो चीजों में आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो अभी आपके पास दो टास्क है, मल्टीटास्किंग, दिस ऑल्सो एंड दैट। तो बट नेचुरल है, एक दोनों में क्वालिटी इज अफेक्टेड, क्योंकि एक था फुल कॉन्सेंट्रेशन और एक है एक ही समय दो काम करने का। ओके, तो the thing which is coming out of it, even though अनंत चीजों पे प्रोसेस कर रहे हैं, आत्मा focuses best when it is focusing on one thing, right? When you do from 1 to 2 things focus, वो multitasking की नहीं जाती है। You can go from 2 to 3, yes. You can do 10 things also, yes. Your Atma has the capacity to do it, and you can do multitasking, which is possible, not a problem. Okay, so multitasking is possible on infinite things. I rest my case here according to Jainism. But now let us see what does Jainism, मतलब महावीर स्वामी भगवान says on this issue. भगवान says कि even though ये आत्मा इतनी चीजों पे प्रोसेस कर रही है डेटा, यदि एक पे करेगा तो फुल एक टास्क होगा तो पूरा कंसंट्रेशन एक चीज पे होगा। ओके, 10 चीजों पे नहीं होगा, तो 10 चीजों में डिवाइड होगा तो कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। पर एक चीज पे जब करता है ना, तब बेस्ट क्वालिटी आती है। दैट इज व्हाट महावीर स्वामी भगवान हैज सेड। आप बोलोगे नहीं, आजकल तो फैशन स्टेटमेंट है कि सब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। एवरीबडी थिंक्स द पर्सन हु डज मल्टीटास्किंग इज सुपर ग्रेट, लोग ऐसे लोगों को बहुत ग्रेट करता है, पता है। जैसे आई माइट जस्ट टेल यू, okay, if people have understood this, can I just remove the screen? Dinesh, how do you remove the screen? असीमा जी, या जैसे अभी आप ये चीज मती ज्ञान जो बता रहे हैं, इसमें अभी आप जो बोल रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, एंड दैट इज देयर। एंड जो पेपर है हमारे सामने जेरोक्स किया और प्रिंट आउट है, उसे हम देख भी रहे हैं, साथ साथ में उसे रीड आउट मतलब जैसे कर रहे हैं। तो ये क्या अभी जैसे देख रहे हैं, तो ये व्यंजन वगैरह में नहीं आएगा? हाँ, तुम देख रही हो तो व्यंजन आंख का व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। आप अवग्रह समझो ना, यू कांट अंडरस्टैंड व्यंजन अवग्रह, रथ अवग्रह, इस लेवल पे प्लीज मत समझो, इट विल बी टू मच ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग फॉर यू। आप सिर्फ अवग्रह मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो आप कानों से सुन रहे हो और अपने सामने ये कागज जो मैंने भेजा है उसको पढ़ रहे हो, राइट? तो ये दोनों से एक ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, ये मल्टीटास्किंग माइंड। हाँ, तो ये इवन दो ये आपको लग रहा है कि ये दो एक्टिविटी है, नो, ये दोनों आंखों से आप इसको देख रहे हो और कानों से मुझे सुन रहे हो, ये दोनों चीजें इंद्रियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है और आत्मा को दे रहे हो, आत्मा प्रोसेस कर रही है इस डेटा को। आप समझ रहे हो? ओके, आशिमा या शशि, आशिमा या विनीता, चल मैं बोल रही हूँ, जैसे तुमने अभी बताया कि मल्टीटास्क होता है ना? हाँ, तो अपने जैसे कहते हैं ना, एट ए टाइम एक समय में एक ही काम होता है, तो ये कैसे कंक्लूजन अपने कैसे समझे फिर? ऐसा किसने बोला है?
ऐसा तो किसी कहीं भी नहीं बोला गया है। आप जो बोल रहे हो ना वो उपयोग के लिए बोल रहे होगे कि जब मति ज्ञान का उपयोग होता है तब शुद्ध ज्ञान का उपयोग नहीं होता है, और जब शुद्ध ज्ञान का उपयोग चलता है तब मति ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। तो उपयोग जो होता है ये क्रम अच्छा। पूर्वक होता है। पहले हम लोग जो छद्मस्त लोग हैं, पहले मतलब नहीं, पहले मति ही होगा फिर ही शुद्ध होगा। यू नो दैट, पहले शुद्ध पहले नहीं हो सकता। सो ये क्रम पूर्वक होता है, मति के बाद उपयोग शुद्ध होता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उपयोग बिकॉज आई हैवंट टॉट दैट इन दैट। Okay. अच्छा। I'm not talking about उपयोग. What am I talking about is कि constantly अनंत चीजों पे आत्मा प्रोसेस कर रही है डेटा, राइट? पर वो माइल्ड फॉर्म में हो रहा है, माइल्ड फॉर्म में, ओके? ऐसा जैसे माइल्ड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा डेटा हो रहा है, जैसे मैं बोली ना ठंडी लग रही है, पसीना आ रहा है, मुझे यहाँ पानी पीना है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, या मेरे बच्चे, ये सब का लाइट वर्जन हो रहा है। मतलब सिर्फ अवग्रह यहाँ तक हो रहा है, आई एम नॉट इवन बॉदरिंग। फुल कॉन्सेंट्रेशन यू आर गिविंग टू दिस क्लास, व्हाट यू आर हियरिंग फ्रॉम योर ईयर्स, ओके, और व्हाट यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम योर आईज, ओके, तो ही आपका बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा। आप देखो आपके कमरे में कोई और आदमी आके चल के भी चला जाएगा ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस माई डेटा सो वेल। आर यू क्लियर? इसीलिए आप कई बार बोल देते हो प्लीज डोंट यार कम इनटू माय क्लास, माय क्लास इज कमिंग, राइट? हाँ, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में दे थ्रो यू आउट एंड से please don't enter the room, yaar, literally, right? And they throw a fit if you enter the room, right? It is because yaar you don't understand that you are, तुमको लगता है अरे झाड़ू पोछा करने तो भेज रही थी मेड को, like you know this is the excuse we give, right? अरे उसमें क्यों इतने कूद रहे हो यार? अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा? They need 100% concentrate on what the teacher is teaching them, right? आप उसके मति ज्ञान के अंदर घुस रहे हो, right? और वो बेचारे उनका आत्मा cannot stop processing this data. Their आत्मा will process कि कोई झाड़ू पोछा कर रहा है। आपको लगता है यार एक menial job है झाड़ू पोछा, मत देखो उस मेड को। ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा उस information को process ना करे। There is not a switch off button. You understand? तो कई बार बच्चे समझा के थक जाते हैं, मम्मा प्लीज मत आओ, मम्मा I need to finish this task, मम्मा I have a project to finish. एंड पेरेंट्स आर लाइक उनको तो सफाइयां ही करनी होती है, उनको तो यही करने से नहीं, यू अंडरस्टैंड राइट? कितने झमेले होते हैं पेरेंट। मैं बोलती हूँ हाफ द प्रॉब्लम ऑफ योर मतलब थिंग्स विल गेट सॉल्व यदि आपको मति शुद्ध नंदी सूत्र लेवल पे आ जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द पर्सन इज टेलिंग यू दिस प्रॉब्लम, ओके? ठीक, ओके, थैंक यू। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दिस टॉपिक वाज या टेल मी या पूजा। आंटी इन प्रीवियस क्लास जब आपने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बताया था एकदम इनिशियली, तब वो ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल आपने तब भी दिया था कि वो पानी का ग्लास गिर जाता है, तो आप बोले कि जैसे ग्लास गिर गया तो हम लोग मति ज्ञान से समझते हैं कि वो ग्लास गिरा है, बट श्रुत ज्ञान से हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा ग्लास गिरा, क्या गिरा। नहीं, किसने बोला? श्रुत ज्ञान मतलब मति से जो मैंने मेरी आत्मा ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थ्रू इंद्रिय, अंडरस्टूड? उसको प्रोसेस कैसे किया? अभी तो मैंने श्रुत मतलब पूर्व भाव में यदि मैंने पतीले गिरने की मुझे आवाज पता है, चम्मच गिरने की आवाज मुझे पता है, ग्लास गिरने की आवाज पता है, व्हाट इफ एक ऐसा यूटेंसिल गिरता है कि मुझे समझ ही नहीं आता है, राइट? कि भैया ये तो मैंने आवाज ही नहीं सुनी, समझ नहीं आई क्या गिरा होगा यार, आई एम थिंकिंग एंड आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो व्हेन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, दैट इज, उसके लिए मैं अश्रुत को यूज करती हूँ। अश्रुत के लिए अश्रुत निश्चित आई हैवंट टॉट यू येट, राइट? आई टीच यू लेटर, ठीक है? सो वो अश्रुत से उस चीज पे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ एंड आई गेट द डेटा। जब वो चीज मुझे समझ में आ जाती है देन इट बिकम्स श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान इज नॉट समथिंग डिफरेंट, मतलब ये एक ही चीज को फास्ट है। लाइक आई गिव एन एग्जांपल, तुम एक गूगल में एक क्वेश्चन पुट अप करती हो, एनीथिंग लाइक यू नो नेक्स्ट जनरेशन इज गूगलिंग ऑल द टाइम, राइट? सो वो थोड़ा टाइम लेता है, प्रोसेस करता है, तब तक सर्कल आते हैं, राइट, ऑन द स्क्रीन, ये मतलब बहुत प्रोसेस हो रहा है डेटा। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है डेटा इज द मति ज्ञान, यू अंडरस्टैंड? जब समझ आ जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। शुद्ध ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है। शुद्ध ज्ञान में द होल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, चीज समझ में आ गई और मुझे चीज समझ में आ गई, दैट बिकम शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में आई हैव अंडरस्टूड, आर वी क्लियर? हाँ, तो शुद्ध ज्ञान का जो तुमने डेफिनेशन दिया, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, इट इज यू हैव टू बी, देखो आई गिव यू एन एग्जांपल। बहुत लोग कर्म ग्रंथ करते हैं, बहुत लोग कर्म ग्रंथ करते हैं, ठीक है? बहुत लोग बहुत जैनिज्म का बड़ी चीजें करते हैं, उसमें वो लोग ऐसे बात करते हैं, पता है 8वें गुण स्थान के अंदर मति ज्ञान का विच्छेद, मतलब इसका उदय विच्छेद, यू नो उदीर्णा विच्छेद और पता नहीं बंध विच्छेद, दे रिमेंबर एवरीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, पर उन लोगों से यदि पूछ लो कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता क्या है ना,
दिल भी लाइक, मतलब उनको ये पता है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान यहाँ मतलब 10वें गुण स्थान के एंड मतलब कहाँ तक रहता है और वो 12वें गुण स्थान में खत्म होगा कि 3rd गुण, आई मीन दे नो एवरीथिंग, राइट? पर भैया होता क्या है, दे डोंट नो, राइट? मैं तुमको ये इसलिए बता रही हूँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो उसी से समझ में आएगा. वट एवर आई एम शोइंग यू द एप्लीकेशंस, राइट, कम्स बाय नोइंग व्हाट इज मति ज्ञान एंड शुद्ध ज्ञान. शुद्ध ज्ञान इज नथिंग, जो मैंने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, प्रोसेस की है, उसको समझ आ जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान बन जाता है. ओके, शुद्ध ज्ञान इज वेरी स्मॉल थिंग. जब समझ आ गया, एंड ऑफ द प्रोसेस इज शुद्ध ज्ञान. एनी डाउट्स देयर पूजा? No, I'm clearing my doubt कि मति ज्ञान is all the processing of data, और जब समझ में Collection and आ जाता processing. है, okay, समझ में आ गया? प्रोसेसिंग इज मति ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान. मति ज्ञान एंड समझ में आ गया तो शुद्ध ज्ञान है. सी दीज आर ऑल कोलोकियल वर्ड्स. पहले तुम इनको समझा लो, फिर जब थ्योरी के डेफिनेशंस पढ़ोगी ना तुमको खट से समझ में आ जाएगा. जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत जेनरिक एंड लेमैन लैंग्वेज की भाषा में बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्लास जो है ना एलिमेंट्री लेवल पे है, तो आप समझो कि मैं एलिमेंट्री बच्चों के लेवल पे तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके, तो मैंने अभी तक क्या बताया था कि आत्मा अनंत चीजों पे काम करता है, पर हर चीज को वो हाई लेवल पे नहीं करता है. मुख्यतः एक चीज पे जितना यदि वो कॉन्सेंट्रेट करता है तो बेस्ट रिजल्ट देता है. मुख्यतः एक, और गौण रूप में, गौण मतलब लाइटर वन पे अनंत चीजों पे वर्क करता है. बट तुम अपनी आत्मा को पुश करोगे, राइट, तो वो एक क्या been doing. That is exactly what हम लोग करते हैं. देखो, certain jobs require you to do multitasking. Okay, I'll tell you what kind of jobs require multitasking. मान लो एक फौजी है, right, a soldier in enemy territory. उसको पता है कि मेरे को अपने इंद्रिय एकदम heightened form में रखने हैं. A small sound will give me information कि I am in enemy territory. यदि मैं नहीं बचूंगा, यदि मैं आवाज नहीं सुन के उस डेटा को प्रोसेस नहीं करूंगा और उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, तो भैया द नेक्स्ट बुलेट विल बी ऑन मी और मैं मर जाऊंगा. सो सम जॉब्स रिक्वायर heightened state of mati शुद्ध ज्ञान. ओके, सो फौजी इज वन, लाइक इन एनिमी टेरिटरी. ओके, लाइक इफ यू आर अ पायलट, राइट, अ स्प्लिट सेकेंड डिसीजन में भी आप गलती करते हो ना, यू एरोप्लेन विल क्रैश लैंड. ओके, बिकॉज उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. सो पायलट्स लोगों को बहुत एडवांस लेवल का मति शुद्ध, मतलब जिसको बोलते हैं ना रिएक्टिव पावर्स होनी चाहिए. उनका मति शुद्ध बहुत बहुत फास्ट होता है. इट इज टू मतलब ऑलमोस्ट आप यदि वो 10 या 20 साल यदि उन्होंने एरोप्लेन चलाए होंगे ना, तो उनका मति शुद्ध आपसे डबल होगा. मतलब उनकी इंद्रिया कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट करना इज डबल देन यू. ओके, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, ओके, which requires you to do that. क्या होता है कि जब मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, मतलब मेरे पास बहुत काम आता है, राइट, तो मेरी इंद्रिय, मेरी बॉडी में से एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, राइट, उसकी वजह से मेरी पूरी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, मतलब दे आर ऑन हाई अलर्ट. और वो क्या करती है, बेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब बेस्ट उसको इतनी हाइटेंड स्टेट में रखते हैं कि कान में थोड़ी भी भनक पड़े खट से मुझे पता लगता है. मतलब आई एम ऑन हाई अलर्ट. डू यू अंडरस्टैंड? So when you do multitasking, right, that high alertness is needed. Okay, it is needed, but please keep it only for a very specific time frame. तुम उससे ज्यादा एक्सटेंड करोगे ना, तो तुम क्या करते हो, मल्टीटास्किंग में ना तुम हाइपर ड्राइव में चले जाते हो. ओके, विच कॉजेज एंजाइटी. आजकल देखो, आजकल बहुत लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो गए हैं बिकॉज दे आर मल्टीटास्किंग 24/7. डोंट डू इट 24/7. मल्टीटास्किंग कैन बी डन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम on specific issues. वो करके learn to relax. Okay, always come down to one thing. Jain Dharam is saying if you multitask, quality does get hampered. Okay, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी बच्चे की क्लास कमरे में जा रहे हो, आप अपने बच्चे की क्वालिटी खराब कर रहे हो, इसलिए एग्जाम के दिन में तो वो बच्चे अंदर से दरवाजे लॉक कर लेते हैं कि भाई बेटा कोई गलती से भी ना आ जाए. Why are they doing? They fed up of you, right? कि भैया तुम घुसते हो और मेरा एग्जाम खराब कर दोगे, right? I can't even risk it, right? So on multitask issues, right, it is better आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो. आप देखो, हमारा साथ जितने भी होंगे,
वो एक काम लेते हैं, एक काम करते हैं। कंचन आंटी कितनी बार बोलती है हमारा साथ धीरे धीरे काम करते हैं, राइट? कोई हड़बड़ी नहीं होती है उनको, कर रहे होते हैं। जब वो काम खत्म हो जाता है उसको वाइंड अप करके फिर दूसरा काम पकड़ते हैं। हैव यू सीन हमारा साथ डू मल्टीटास्किंग, राइट? खाना भी खा रहे हैं और बेटा स्वाध्याय भी कर रहे हैं, राइट? चल भी रहे हैं, मतलब इरियापथी के अंदर वो सामने वाले को बोल रहे हैं आजा यार तू समझा, मैं तेरे को पूरा टॉपिक सिखा देता हूँ, वाइल वी आर गोइंग विहार कर रहे हैं हम लोग। अभी ऐसा हमारा सा करते हैं, दे डोंट डू मल्टीटास्किंग, दे आर टोल्ड बॉस एक ही काम करो, भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं, डू वन जॉब यू विल डू अ बेटर जॉब, राइट? मल्टीटास्किंग इज नॉट अ गुड थिंग। हमारे जमाने में ये एक मुसीबत है कि पहली बात तो मुसीबत है कि करनी पड़ती है, बिकॉज वी डोंट हैव वी हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है? सम जॉब रिक्वायरमेंट्स आर टू मल्टीटास्क, ओके? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम के दिनों में यहाँ हर चीज, चाहे देखिए कोई भी काम होता है ना वो लास्ट मोमेंट पे बेस्ट होता है, चाहे आधा काम बचा हो लेकिन लास्ट डे पे वो डेफिनेटली खत्म हो जाता है, राइट? वाई? जितने भी प्रोजेक्ट्स के डेडलाइंस होते हैं, वाई आर डेडलाइंस क्रिएटेड? कि भैया आखिरी दिन तो तुम काम कर लोगे, राइट? बिकॉज यू आर इन अ पैनिक स्टेट, राइट? योर इंद्रियज ऑन हाई अलर्ट, राइट? वो सारा इंफॉर्मेशन बेस्ट तरीके से लाके आपका दिमाग चलता है कि अरे इस टॉपिक पे ये भी ले आऊँ, गूगल करके ये इंफॉर्मेशन भी डाल दूँ, प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द डेडलाइन टाइम आपके पास वो प्रोजेक्ट रेडी होता है, राइट? हम लोग ये सब कुछ करते हैं। हमारे जमाने में भी हम पूरा साल नहीं पढ़ते थे, एग्जाम के एक दिन पहले सो के उठते थे और 4-4 घंटे सोते थे और पूरा ऑलमोस्ट यहाँ से ये नोट्स भी पढ़ लो, बुक्स भी पढ़ लो, समझ के भी कोशिश कर दो, सब कुछ कर लेते थे, राइट? हम लोग ऐसे करते थे। बट क्या करते थे कि जब एग्जाम खत्म हो जाती थी, एक हफ्ते या 10 दिन के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाती थी, हम 3-4 दिन सोते रहते थे। दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू, ओके? इट मीन्स इवन दो हम हाइपर एक्टिविटी में गए, देन वी आर कूलिंग डाउन आवर सिस्टम, ओके? बट आजकल कोई करता नहीं है। हम लोग 3-4 दिन आई यूज्ड टू जस्ट स्लीप, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू जस्ट वेक अस एंड बोलते थे खाना खा लो, खा के हम सो जाते थे, राइट? आजकल तो क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली एग्जाम खत्म होती है एंड दे गो टू फॉर लंचेस, डिनर्स, पार्टीज में जाते हैं, राइट? दे आर नॉट कूलिंग डाउन देयर सिस्टम। व्हाट विल हैपन, राइट? यू नीड टू कूल डाउन। मल्टीटास्किंग इज नॉट अ गुड थिंग। एवरीबडी थिंक्स देखो मल्टीटास्किंग माइट गिव यू टेम्पररी बेनिफिट कि आपका वो काम बहुत अच्छे से खत्म होता है, मतलब इट गिव्स यू द बेस्ट अलर्टनेस ऑफ इंद्रिया एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, बहुत अच्छे से आप काम कर लेते हो, राइट? लोग आपको तारीफ देंगे कि यार कितनी अच्छी लड़की है, इतने सारे काम साइमल्टेनियसली करते हैं, दैट इज ऑल। बट ये आपके बॉडी का कितना बाजा बजाते हैं ये आपको नहीं पता। यू माइट गेट इनटू अ हाइटेंड स्टेट ऑफ एक्टिविटी and you won't know how to come back and relax. You will not know. A lot of people, they get into a hyperdrive. There is a medical problem known as hyperdrive. There is a medical problem known as anxiety, right? You can't come back. When you want to relax, you can't relax. Do you know? जो आदमी रिलैक्स ही नहीं कर पाता है, उसका बॉडी रिलैक्स ही नहीं कर पाता है, फिर वो क्या करता है? You know, एडिक्शन इश्यूज कहाँ पे क्यों आते हैं? एडिक्शन इश्यूज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दीज आर डिप्रेसेंट्स। चाय पीना, चाय, कॉफी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाट अदर थिंग्स आर देयर, राइट? एडिक्शंस टू वो आजकल नेटफ्लिक्स एंड ऑल दिस सोशल मीडिया है, व्हाट आर दे? दे डिप्रेसेंट्स। वो आपको उस हाइपर ड्राइव से लेके आपको लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जो आपको उस हाइपर ड्राइव से अलग ले गया है, राइट? आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, बट दे आर नॉट सोल्यूशन। इसीलिए जब आप हाइपर ड्राइव में जाते हो, यू गो वेरी सिंपली इनटू एडिक्शन इश्यूज। दिस इज द रूट कॉज। पर आपने एक बार एडिक्शन चालू कर दी, देन यू कांट स्टॉप योर, मतलब जो उस टेम्पररी आपको रिलैक्स करना नहीं आया, राइट? इसीलिए जितने भी लोगों की जैसे हाइपर ड्राइव वाली जॉब्स होते हैं, जैसे फौजी होते हैं, राइट? टू मच रिलायंट ऑन दारू इज फ्रीली अवेलेबल इन फौज। व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। आई नो व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट इज डन। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ गुड थिंग, आई एम जस्ट सेइंग दिस आर द रीजंस व्हाई इट इज देयर, ओके? जो आदमी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, जिसके अंदर स्प्लिट सेकंड डिसीजंस के बेच दो और खरीद लो, इतने स्टॉक्स बेच दो, इतने स्टॉक्स खरीद लो, कैन मेक अ डिफरेंस इन lakhs of rupees प्लस माइनस हो सकते हैं आपके लाइफ के अंदर, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर हाई एंजाइटी प्रोन जॉब्स, ओके? यदि आपका बच्चा छोटा है, वो रो रहा है, आपको उसको गोदी में लेना पड़ेगा, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी काम कर रहे हो। सो ऑल दी एज अ हाउसवाइफ ऑल्सो योर जॉब कैन बी एट टाइम्स a multitasking job. Even though you have to do it, please do it. But learn to relax after a while and come back to normal, right? यदि नहीं आए, you will go into a state of hyperdrive or anxiety or
something which you cannot come back and relax. You will not know how to relax, right? And relax, आप relax नहीं कर पाओगे ना हाइपर ड्राइव में, एंजाइटी के अंदर, तो आपको लगेगा मेरे को शांति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? लेट मी हैव अ ड्रिंक, दारू, दैट इज दारू, और लेट मी स्मोक, राइट? एक चाय पी लेती हूँ, राइट? दे आर डिप्रेसेंट, दे विल गिव यू, दैट विल स्लो डाउन योर माइंड, राइट? एंड यू विल फील गुड, बट दे आर ऑल एडिक्टिव बिहेवियर्स एंड यू लैंड अप इन प्रॉब्लम, ओके? आप देखो कि कब स्टार्ट होता है दारू पीना, सिगरेट पीना, चाय पीना, कब आता है? जब एंजाइटी स्टेट में होते हो तभी चालू होता है। बट क्या होता है कि जब चीजें नॉर्मल हो जाती है, यू डोंट कम आउट ऑफ इट, तब तो एडिक्शन लग चुका है, यू आर अ गॉन केस, देन यू विल ऑल योर लाइफ कीप ऑन डूइंग ऑल दिस एडिक्शन इश्यूज, राइट? सो these are unhealthy ways. There are a lot of unhealthy ways to, you know, calm your body, right? Calm your body means relax. There are a lot of positive ways to calm your body in the sense, ये जो multitasking जो हम माइंड से कर रहे हैं, उसको, उसकी बहुत हेल्दी तरीके हैं। क्या हेल्दी तरीके? आप देखिए, कभी जब हाइपर ड्राइव में जाएंगे ना, तो आपको लोग बोलेंगे कि प्लीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब डीप ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ छोड़ो, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड टू अ पर्सन जो हाइपर एक्टिविटी होता है, जिसको एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको प्राणायाम बोला जाता है आजकल। प्लीज डू प्राणायाम, राइट? आप देखिए, मोस्ट मेडिटेशन इज रिकमेंडेड टू दीज पीपल। प्लीज आप मेडिटेट करिए। क्यों? मेडिटेशन में यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग, तो मल्टीटास्क से आप एकदम, you will come down to that, okay? Lot of therapies are given, like art therapy, like बोला जाता है कि please if you have anxiety prone jobs, do art. आपको drawing painting अच्छी लगती है, paint a picture, paint a job, मतलब you know, paint all those things, do painting, do music, do take up a sport, right? Because if you're going to play tennis or you're going to play basketball or badminton, right, you'll be concentrated on badminton, you'll be focusing on that thing, और तुम एक चीज पे टास्क को ले आते हो और मल्टी जो सोच रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, राइट? दीज, तो माइंडफुलनेस करके एक चीज, मतलब दीज टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, राइट? इट मींस एक चीज पे कंसंट्रेट करो। जो हाइपर 50 चीजें तो तुम्हारा ब्रेन फोकस कर रहा है, इसको इट विल ब्रिंग डाउन टू वन थिंग, ओके? सो दीज आर द हेल्दी वेज। कई लोग हमको बोलते हैं हमारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी ना, तो हमने यू नो प्राणायाम किया, हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई। कई लोग बोलते हैं हमने विपस्सना किया, हमको बहुत फायदा हुआ। कई लोग बोलेंगे हमने आर्ट ऑफ लिविंग का वो जो सुदर्शन क्रिया किया, हमको बहुत फायदा हुआ। कई लोग बोलते हैं आई लव टू पेंट, इट रिलैक्सेस मी, राइट? सम पीपल से आई लाइक टू डू स्पोर्ट्स, राइट? इट रिलैक्सेस मी, राइट? सम पीपल डू मेडिटेशन, इट रिलैक्स। व्हाई डज इट रिलैक्सेस यू? बिकॉज ये मल्टीटास्किंग से आप नीचे गिरते हो। दीज आर हेल्दी वेज टू रिटर्न फ्रॉम अ हाइपर, ये अभग्र इहावाय धारणा जो ब्रेन कर रहा है ना, इतनी चीजों, मतलब मेन यदि 5 पे कर रहा है, 10 पे कर रहा है, इसको लाके 1 पे कर देता है, which is a good thing. Are you clear? So the question was on multitasking. So I'm telling you, yes, multitasking will give you instant benefit, instant फायदा दे रहा है आपको, right? आपकी एड्रेनलिन रश से आप you're performing better और बहुत अच्छे से आप काम कर पा रहे हो, but don't remain there. Learn to come back to one job, okay? And for that one job, if you don't do, your body will go in hyperdrive anxiety, and which will lead to so many medical problems. देखो, जब तक आप 20-30 साल के हो ना, तब तक तो आप you can take your body for granted, right? अब बोलोगे एंजाइटी हो गया तो क्या हुआ, मैं मल्टीटास्क करता हूँ, I can work, ठीक है? 30 साल के बाद है ना, आप लोग ये वर्ड्स यूज करने लग जाते हो, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो, ये सब जार्गन्स हैं भैया। ये चीजें आपको 15 साल में ही समझ आ जाती थी कि आप हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 30 इयर्स में नहीं हो तो 40 इयर्स में तो डेफिनेटली मेडिकल इश्यूज चालू हो जाएंगे आपको। डेफिनेटली योर बॉडी विल गो इनटू अ हेवाय, टोटल हेवाय, और तब आप उसको संभाल नहीं पाओगे, राइट? मेजर प्रॉब्लम ये एक्सेसिव माइंड थिंकिंग, दैट इज मेंटल। सी, ये जो मैं मल्टीटास्किंग बोल रही हूँ इज नॉट फिजिकल मल्टीटास्किंग। मैं 50 काम फिजिकली कर सकती हूँ, माइंड को एक-एक काम दो, सिंपल। आर यू क्लियर? It help it soothe down. Take पहले काम। I have a question. Yeah. I have a question. Yeah. कि मल्टीटास्किंग में कॉन्सेंट्रेट आपका डिवाइड हो जाता है, बट यू डिवाइड इट इन टाइम शेड्यूल, तो आप मल्टीटास्किंग फुल कंसंट्रेशन से कैसे करते हो? कैसे आप मल्टीटास्किंग में टाइम शेड्यूल का करते हो? चलो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। कब? वन एट अ टाइम। नहीं, I'll give you an example, ठीक है? There are phases of life जहाँ पे आदमी
लिटरली क्रेजी की तरीके से बिहेव करता है. लेट मी गिव यू एग्जांपल्स ऑफ इट. ठीक है, ज्यादातर सारे बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल. ठीक है, सो इफ यू डोंट फॉल इनटू द कैटेगरी, great, but most of the children, when they reach class 8th or 9th standard, right, they start thinking boys and girls, you know, like if I'm a girl, I'll say I like that boy, you know, in your head, okay, right? And I am thinking 24/7 about it, right? मतलब उसके बाद से, मतलब boyfriends issues, girlfriends issues starts in my head. उससे क्या होता है, मेरे को स्कूल की एग्जाम्स भी देना है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मेरे को अपना करियर भी बनाना है, मुझे आई हैव टू अबाइड बाय मिलियंस ऑफ 20 थिंग्स, मुझे सब कुछ करना है, राइट? प्लस माय ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स इश्यूज, व्हिच इज अ मेजर पार्ट ऑफ थिंकिंग. द किड्स एंजॉय जब तक द अफेयर इज गोइंग ऑन अ गुड ग्राफ, राइट? वो हैप्पीनेस मिल रही है तो चलो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर स्टिल गोइंग ऑन अ हाइपर ड्राइव, राइट? बट क्या होता है कि all these affairs don't last, you know, you have a breakup, right? ब्रेकअप होता है ना तो ग्राफ स्टार्ट गोइंग डाउन, मतलब आप दुख ही मिल रहा है आपको, ठीक है? तब एंजाइटी का पता लगता है कि भैया जब चढ़ रहे थे ना तब भी एंजाइटी थी, पर तब दिख नहीं रही थी क्योंकि तब बड़े खुश हो रहे थे, राइट? तो ब्रेकअप्स होता है ना, कई लोगों के ब्रेकअप्स इतने पेनफुल होते हैं, इतने पेनफुल होते हैं कि इट ऑल्टर्स देम, मतलब लिटरली इट ऑल्टर्स देयर साइकोलॉजी, राइट? क्योंकि वो इतने पेनफुल होते हैं क्योंकि दे डोंट रियलाइज कि यार तुम मल्टीटास्किंग कर रहे थे. वो यही सोचते थे मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से उसने मुझे डिच किया या मैंने उसको डिच किया. आई मीन दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, यू नो, लाइक आई कैन टॉक अबाउट अ गर्ल कि मैं उस लड़के के बारे में सोचना ही बंद नहीं कर सकती हूँ. दैट्स व्हेन लॉट ऑफ एंजाइटी रिएक्शन हैपेंस. सो ब्रेन इज मल्टीटास्किंग, राइट? द किड्स sometimes go into hyperdrive, anxiety prone reaction, constantly sad, constantly, आप देखो ये सारे symptoms बच्चों में दिखाई देते हैं, right? अफेयर इश्यूज में, ब्रेकअप में तो इट गोज क्रेजी. सेकेंड टाइम मैं आपको बताती हूँ, बाय द टाइम यदि ये बच्चे को नहीं हो, जब बच्चा 11th और 12th में आता है, मतलब अ किड इज कमिंग इन 11th एंड 12th, उस बच्चे को एक ही चीज दिखाई देती है, मम्मा मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, मतलब आई नीड टू गो इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी. सी इट इज गुड टू प्लान एंड एम वेरी बिग कि आई नीड अ गुड यूनिवर्सिटी, वेरी गुड, यू नीड टू डू दैट. पर बच्चे उस पर मेहनत करो ना यार, वर्क ऑन द मतलब जो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, वर्क ऑन 20 थिंग्स, बट नहीं, दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब. ड्रीम करना, अच्छा भाई मम्मा मेरे को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, सो दैट गोज, वो दे कांट स्टॉप देयर ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग हर आधे घंटे बाद वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा मम्मा. अरे वो 2 साल के बाद जब अप्लाई करोगे तब रिजल्ट आएगा, पर वो 2 साल इतना दुखी है एंड मल्टीटास्किंग, मतलब 24/7 दे आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, राइट? प्लस दे हैव टू परफॉर्म इन 11th स्टैंडर्ड, इन 12th स्टैंडर्ड, प्रोजेक्ट्स, स्कूल एग्जामिनेशंस, 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब पे इतना काम करते हैं. दिस इज व्हेन मोस्ट ऑफ द किड्स हैव प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटीज, राइट? आई एम जस्ट सेइंग उन बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए बाय सेइंग यस, वर्क ऑन द थिंग्स, एम गुड, राइट? हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. व्हाई आई से ऑलवेज हैव प्लान ए, प्लान सी, हैव गुड यूनिवर्सिटीज, एम फॉर द बेस्ट, राइट? आइडियली कॉलेजेस मना नहीं करती हूँ, बट ऑल्सो हैव प्लान बी. व्हाट ए, प्लान ए नहीं मिला, विल हैव प्लान बी, इफ नॉट प्लान सी ऑल्सो. इससे दिस विल हेल्प यू स्टे कामर, राइट? एंड यदि वो नहीं भी मिला, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू विल गेट समथिंग. बट लोग क्या करते हैं, उनके वो एक ही चीज उनके पास ऑप्शन नहीं, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए एंड नथिंग एल्स. यदि यहाँ नहीं मिला तो इट इज एंड ऑफ लाइफ, राइट? वो इतना ज्यादा उस पर ओवर थिंक करते हैं, दे गो इनटू एन एंजाइटी मोड इन दैट स्टेज, 11th 12th स्टैंडर्ड. आप देखिए आपके आसपास देखो, लुक अराउंड यू, सब लोग मतलब मोस्ट ऑफ द किड्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्ट ऑफ द किड्स, ओके? आई विल टेल यू व्हाट अदर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, ठीक है? एक और स्टेज होती है जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है, राइट? शादी हो रही होती है, तो जैसे वो शादी करके जाती है, राइट, द कांस्टेंट फाइट बिटवीन मदर इन लॉ, द कांस्टेंट फाइट बिटवीन जेठानी देवरानी, वेरी मेजर इश्यूज. वो जो लड़की जिसकी अभी भी शादी हुई है, चाहे 6 महीने 1 साल के बाद, ऑल शी इज डूइंग एंड थिंकिंग इज आई हेट माई मदर इन लॉ, आई हेट माई मदर इन लॉ, आई हेट माई देवरानी, आई हेट माई जेठानी. I mean, all these जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो उसकी फैमिली में आ जाते हैं ना, that becomes so big,
मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि वो 24/7 वो सोच रही होती है। उसके बीच में से उसको थोड़ा सा टाइम ब्रेन को देती है, अरे ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं, लंच क्या बनाऊं, इसको देखूं, अपने पति को देख लूं, राइट? जब पति भी अटेंशन मांगता है तो वो ऐसी चिड़चिड़ी हो, उसको गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऑल शी इज डूइंग इज थिंकिंग आई हेट माय मदर इन लॉ, व्हाट द हेल, यू नो, शी इज कांस्टेंट चिड़चिड़ा। देन व्हाट एल्स इज देयर? Brain is getting into hyperdrive because brain cannot stop thinking about mother-in-laws and the Devrani issues, Jethani issues, and the rivalry between all those issues. That is a major area of problem area. Problem area means anxiety attack issues. Okay, right? इसीलिए शादी होने के पहले लोग बहुत ग्रेट होते हैं, और शादी होने के बाद बेटा वो फिर ये मदर इन लॉ देवरानी जेठानी इशूज ही कर रहे होते हैं, फिर वो ग्रेट नहीं बन रहे होते हैं, पहले बहुत ग्रेट बन रहे होते हैं, दे आर अचीविंग थिंग्स इन लाइफ, और उसके बाद फिर वो यही अचीव कर रहे होते हैं कि मैंने मेरी सास को ना ये कर दिया और अपनी देवरानी जेठानी से जीत गई. दैट इज ऑल दे आर डूइंग, राइट? एंड दे विनिंग फ्रॉम देयर मदर इन लॉ, दे विनिंग फ्रॉम देवरानी जेठानी. Seriously, is it worth it? Winning from Devrani Jethani and mother-in-law, seriously, right? अब I'll tell you more areas where जहाँ पे ये आता है. I mean, I can tell you the problem कहाँ किस जोन में किस एरिया में. एक और मैं बोलना भूल गई, एक और टाइम अटैक आता है एंजाइटी का. मेजर अटैक्स होते हैं मास्टर्स प्रोग्राम फॉर अ चाइल्ड. जब बच्चा ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होता है ना, वो फिर पागलों की तरह टेंशन कर रहा होता है, मुझे ये प्रोफेशनल मास्टर्स कोर्स में एडमिशन चाहिए, राइट? और मैं इसके लिए गैप ईयर लूं, मैं इसके लिए इतनी प्रेपरेशन करूं, मतलब इतने ये ट्यूशंस करूं, ये करूं. वो ड्रीम कर रहा है कि मेरे को मास्टर्स प्रोग्राम मुझे अच्छा लगे ना लगे, दे आर नॉट बॉदर्ड. मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है कि दे आर नॉट बॉदर्ड. ऑल दे आर थिंकिंग इज ये कोर्स करके मुझे 1 लाख की जॉब मिलेगी कि 50,000 की जॉब मिलेगी कि 2 लाख की जॉब मिलेगी. ऑल दे आर थिंकिंग इज दैट. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दैट, that is another area of anxiety attacks, all because your brain is multitasking. I'm just saying, you're making a mess, right, of your own body. मैंने अभी मदर इन लॉ इशू का बोला, राइट? द सेम गोज जब एक लेडी की बहू, जैसे मेरी बहू यदि आने वाली है, राइट? तो बहू आ जाती है तो अगेन सेम प्रॉब्लम्स. मैं उसकी लाइफ जीना हराम करती हूँ. व्हाई शी नॉट बिहेविंग लाइक मी? वो मेरी तरह काम क्यों नहीं कर रही? वो मेरी तरह एफिशिएंट नहीं है. व्हाई इज शी नॉट वर्किंग लाइक दैट? झगड़े करे पड़ रहे हैं एंड ऑल दोज इश्यूज, राइट? एंड इट क्रिएट्स अ रकस. सो मदर इन लॉ इज ऑल्सो हैप्पी, डॉटर इन लॉ इज ऑल्सो अनहैप्पी, राइट? देवरानी इशू, जेठानी इश्यूज, तो ये सब चलता ही है. देयर आर डिफरेंट वेज टू थिंक कि आप इस एंजाइटी को कम कर सकती हो. यू नो व्हाट यू शुड डू? जो भी मेरे पास आता है ना मदर इन लॉ, मैं बोलती हूँ कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम आने के ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चालू कर दो. एक और सॉरी, आई फॉरगॉट वन मोर इशू जहाँ पे एंजाइटी अटैक आता है. यू नो वेयर इट कम्स? प्रॉपर्टी डिविजन. मान लो हम 2 भाई हैं, ठीक है, वी आर 2 ब्रदर्स, ओके? सो प्रॉपर्टी डिविजन आता है ना, आई वॉन्ट मैक्सिमम. मैंने मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को सारे पैसे मिल जाए, राइट? और उसको क्या लगता है, यार आई टेक मैक्सिमम, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट्स अ रकस. क्या एंजाइटी स्टेट होता है, राइट? कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं उसने ज्यादा ले लिया, नहीं मैंने दिया. एंड योर ब्रेन इज रियली मेस्ड अप थिंकिंग प्रॉपर्टी इश्यूज. तब तो इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि लोगों के हार्ट अटैक्स तक आ जाते हैं, राइट? सो दिस इज अनदर एरिया ऑफ एंजाइटी अटैक्स. एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स इज ब्रेन बहुत ज्यादा सुपर इम्पोज्ड काम करता है कई चीजों पे, ओके? हर प्रॉब्लम को कैसे देखना, महावीर स्वामी भगवान ने हर इशू को कैसे दिखाया है. लाइक मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ इशू को कैसे देखो सो दैट आपको एंजाइटी नहीं आए एंड यू ब्रिंग थिंग. प्रॉपर्टी इश्यूज को महावीर स्वामी भगवान ने कैसे बोला है, सो यू आर नॉट मल्टीटास्किंग, यू आर डूइंग सिंगल टास्क. यू हैव टू लर्न ईच वन सेपरेटली. स्कूल के बच्चों को बोला जाता है कि बेटा तुम 11th-12th में कॉलेज एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या होगा, दिस इज हाउ महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग यू टू थिंक. और मास्टर्स प्रोग्राम, करियर कैसे बनेगा, राइट? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज को महावीर स्वामी भगवान ने कैसे देखा, कैसे बोला, देखो. यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ईच इशू रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन. भगवान ने सबके लिए अलग अलग दिए हैं. ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज हैंडल योर एंजाइटी इश्यूज. यदि आप मल्टीटास्किंग में ज्यादा चले गए ना, यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट and you are going to spoil your health. If not at 20 years, 30 years, 40 years में तो definitely लिखा के ले लो, your body is going to be totally messed up. You will have minimum 1 or 2 बीमारीज, major बीमारीज, right? And you won't be able to come out of it. याद रखना, health पहला सुख निरोगी काया. And you are multitasking में जितना भी फायदा करवा लो,
लेकिन बॉडी विल नॉट बी इन योर कंट्रोल. डोंट डू दैट. ओके, सो टुडेज क्लास वाज अबाउट मल्टीटास्किंग. यस, भगवान इज सेइंग यू कैन मल्टीटास्क. आत्मा की अनंत शक्ति है. डोंट डू इट, डोंट डू इट. आपको पता है जितने भी आचार्य भगवंत, साधु भगवंत है, एक एक टास्क करते हैं. ऊपर के गुणस्थान में, आई हैव नॉट टॉट यू गुणस्थान, बट आप ध्यान से कभी पढ़ोगे ना, जितने हायर अ पर्सन गोज, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. में चपलता, मतलब जो फास्टनेस एंड दैट रनिंग अराउंड, ये सब चीजें खत्म हो जाती है. बिकॉज Agam is saying anxiety is a form of kashay. Anxiety is a form of kashay. There is something wrong in your system where you are not able to sort out your mind. So on each issue, figure out how to solve it. If you want, by the end of the Karam theory or North Tattva, we can go into हर इशू को हम कैसे, महावीर स्वामी भगवान ने कैसे देखने को बोला है एप्लीकेशन में, जिससे आप अपनी एंजाइटी कम कर सकते हो. मतलब सम्यक तरीका क्या है उस इशू को. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज में सम्यक तरीका, सम्यक दर्शन से भगवान ने क्या बोला, इस इशू को कैसे देखो. वी कैन टेक द क्लासेस ऑन दैट, राइट. यदि प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, राइट, इफ आई एम हैविंग अ फाइट ऑफ प्रॉपर्टी के, यार मेरे को ज्यादा मिल जाए, महावीर स्वामी भगवान ने सम्यक तरीका क्या बताया है देखने का. आई विल टीच यू दैट, राइट. आई विल ऑल्सो टीच यू mother-in-law issues, like if one of my student is going to become getting a daughter-in-law, like उसकी बेटे की शादी हो रही होती है ना, मैं उसको पहले बैठाती हूँ, मैंने कहा बैठ जा, मेरे से 1 घंटा सुन ले, राइट, कि क्या करना है लाइफ में. दिस इज द वे भगवान टोल्ड यू टू लुक. बच जाएगी यार, बहुत एंजाइटी से बच जाएगी, जिंदगी तेरी भी सफल होगी, उसकी भी हो जाएगी, राइट. अदरवाइज इट्स अ क्लीशे टॉपिक. सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं, किसको सांस बहू के इश्यूज नहीं है, राइट. और यदि किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो मैं बोलती बैठ जा यार, मैं तेरे को बता देती हूँ कि भगवान, हाउ डज भगवान वांट्स टू सी दैट थिंग, कि यार तुम इतनी मल्टीटास्किंग नहीं करोगे. व्हाट आई फील इज, आपको पता है, मैंने आपको पिन पॉइंटेडली बताया कि बहुलता की अपेक्षा, बहुलता मतलब मैक्सिमम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इशू स्टार्ट्स आफ्टर 8th-9th स्टैंडर्ड. ड्रग्स इशू स्टार्ट्स आफ्टर बाय 11th-12th, राइट. फिर मदर इन लॉ एंड देवरानी जेठानी इश्यूज कम मच लेटर, मतलब जैसे शादी होती है. फिर प्रॉपर्टी इश्यूज कम मच लेटर. ये सारे ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं, मतलब फिक्स्ड है मतलब ब्रैकेट्स आर फिक्स्ड. ओके, सो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा स्टूडेंट आता है ना, मैं क्या करती हूँ, उसके 3-4 साल पहले उस इशू पे कैसे देखना ना, आई स्टार्ट बम्बार्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंकिंग. ये प्रॉब्लम आएगी, इसको ऐसे देखो. तो आदमी बोलता है क्या नॉनसेंस, व्हाई आर यू टीचिंग मी ऑल दिस थिंग्स, आई डोंट वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आई एम नॉट. लाइक छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं आंटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, आंटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, आंटी आई हेट देम, राइट. So I know, yes, you are not interested now, but within 2-3 years, it's a matter of time before all those boys and girls issues will start messing up your head, right? Before they come in 11th and 12th, I start talking on drugs issues. Don't do smoking, drinking, don't do that, because once you are gone, you're gone. I mean, I don't know how to save you guys, right? I don't know how to save you, but don't go there, right? So addiction issues, I start talking 3-4 years before. So by that time वो उस जोन में आते हैं. ड्रग्स, जब फ्रेंड्स दारू पी रहे होते हैं और बोलते हैं यार तू भी लेना, इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट, क्या कर रहे हैं, उनका दिमाग, उनका ब्रेन में दे आर क्लियर, नहीं यार नहीं लेना तो नहीं लेना तो नहीं लेना. दे आर वेरी वेरी क्लियर इन देयर हेड, नहीं करना यार, नहीं करना. बिकॉज 3-4 years पहले से दे आर, वो सम्यक तरीके से कैसे उस इशू को देखना है, दे हैव लर्नड इट. सेम गोज विद अ पर्सन गेटिंग मैरिड. आई ट्रेन यू 3-4 years पहले हाउ टू लुक एट इट, सो यू हैव least amount of fiction between mother-in-law daughter-in-law. Why am I giving you all these examples are, right, कि it will only mess your system up. आपका बाजा बजता है. Don't do multitasking, do one task and you will succeed in life. Succeed मतलब आप जिंदगी में क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते हो, right? But क्या होता है, ये सड़े से टॉपिक उठा के ले आते हो और उन पर इतना ओवरथिंक करते हो. कई लोगों को बोलते हैं ओवरथिंक कौन करता है, वेला आदमी ओवरथिंक करता है. यानी आप पूरे वेले हो. गेट सम एक्टिविटी, राइट, गेट योरसेल्फ सम एक्टिविटी एंड यू विल नॉट ओवरथिंक एंड यू विल save yourself. Okay, so I have right now given you information on how to look at multitasking. Are you clear? आज भगवान says अनंत चीजों पे हो रहा है, बट मुख्यतः एक चीज पे होती है. आप उसको 2, 3, 4 भी बना सकते हो, 10 इशू पे भी सोच सकते हो, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. डोंट डू इट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, डोंट डू इट फॉर एवर, एंड डोंट थिंक इट इज अ योर थिंग टू डू. इट्स नॉट अ योर थिंग टू डू. यू वांट टू मेस अप योर बॉडी, राइट? डोंट डू इट. प्रिपेयर योरसेल्फ. पहले एक और चीज बता दूं, ये जो
चीजें जब एंजाइटी फॉर्म्स होती है और कैसे सही तरीके से देखना है ना, ये जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद सिखाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो चीजें ना बहुत पहले से सीखनी पड़ती है, 4-5 साल पहले बम्बार्टमेंट चालू कर दो, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, क्योंकि प्रॉब्लम चालू हो जाती है ना, उसके बाद सामने वाले आदमी को दिखाई नहीं देता है। आर यू क्लियर? उस वक्त कर्म उदय इतना स्ट्रांग होता है कि आज देखो, एक चीज होती है स्प्लिट सेकंड डिसीजन। स्प्लिट सेकंड डिसीजन में आदमी पहले से सोच के रख ले कि जब ये प्रॉब्लम आएगी मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, राइट? जब प्रॉपर्टी इश्यूज आएंगे ना, तो मैं इस इशू पे ऐसे ही सोचूंगा, बस क्लियर। ऐसे भगवान ने ऐसे बोला है, मैं ऐसे देखूंगा, सो आई डोंट गेट इनटू these issues. He is very very clear in that person's head, right? तो उस वक्त जब स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है होगा, क्योंकि यदि वो प्रॉब्लम चालू हो जाती है ना, वो आधी गलतियां करता है, फिर वो रेक्टिफाई करता है, फिर वो गलतियां करता है, रेक्टिफाई करता है, और मेरे को बोलता है, पता है मैं ना कितनी बार है ना अपनी, मुझे ना मदर इन लॉ पे गुस्सा आ रहा है, कितनी बार मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ चुप रहने में, पर कितनी बार अनसक्सेसफुल हो जाती हूँ, राइट? एंड आई से ये तो ऐसा ही चलेगा, राइट? ये तो ऐसा ही चलेगा। Had you started from much before, had you prepared yourself much before, you would have been in a better position. Okay, so I'm concluding this topic on multitasking. I've given you what Mahavir Swami Bhagwan is telling you on multitasking and what is possible both ways I've explained. Okay, so if you want, I can finish the Mati Gyan ka jo Ashrut Nishrit also. But मैंने application एक angle से सिखा दिया. Is there anybody who has queries on multitasking? Anybody? No? Divanshi, I need the slide again back. Presentation thing. Thank you, Dee. You have explained it so very well. Okay. I yeah, mean, great. like, I got to know what multitasking is and how is it affecting me. Oh, But good, the good. thing is, in today's time, it requires, I mean, like, at most of the times we need to do that. So I've told you, na, a lot of jobs require, so maybe you're as a housewife, especially when your kids are small, requires you to do multitasking. I'm not saying you don't do, but करके ना relax करना सीखो, bring your system. जैसे I'll give you something. मेरे को यदि सुबह सुबह कोई, यदि जब से मैं उठ के, मतलब मैं जितनी समय के 7 बजे से पहले कर लूं, 7 to 10 o'clock is my prime time. 7 to 11. Like if somebody interferes, like phone calls आ जाते हैं, कुछ आते हैं ना, I go into hyperdrive. बिकॉज दाल चढ़ाई हुई है, सब मेड को दिया है कि सब्जी काट ले, एक मेड को बोल रही हूँ यहाँ सफाई कर ले, एक को बोल रही हूँ तू चावल भिजा दे. सो माई ब्रेन इज एनीवे मल्टीटास्किंग ऑन फूड एंगल्स, राइट? इट इज मल्टीटास्किंग कि मेरे को मेड्स को कैसे मैनेज करना है. ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल द डेडलाइंस के मेरे बच्चे को ब्रेकफास्ट लंच इतने बजे तक देना है, हस्बैंड का खाना ये रेडी करना है. आई एम डूइंग मेजर मल्टीटास्किंग, ओके, विच इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल. Do as less as possible, take less workload at that time, least workload, okay, and try to increase the time. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. Okay. पहले मैं क्या करती थी, yeah, I was trying to give you an example. I'll give you an example. पहले मैं क्या करती थी, सुबह यदि 7 बजे उठती थी, by 9 o'clock, मतलब पहले मैं 6 बजे उठती थी, and by 7:30 my breakfast, lunch and dinner was ready. मतलब डिनर की भी प्रिपरेशन हो जाती थी, breakfast, lunch is ready, okay. अब it means my brain is doing almost simultaneously 5-6 works because मेरे को 4-5 तो खाना बनाना होता था, सर्वेंट्स को मैनेज करना होता था, साइमल्टेनियसली कौन हिला रहा है, कौन ये कर रहा है, एवरीथिंग. ये 5-6 कास्ट होते थे. जैन धर्म पढ़ के मैंने 2 किचन में और एक्टिविटी डाल दी. वो क्या है? यत्ना करना और सुपात्र दान की भावना. सो आई हैव 5 मेजर जॉब्स इन व्हेन आई एम इन द किचन, राइट? 5 तो खाना बनाने के और मेड्स के रिलेटेड एंड फिनिशिंग माई टास्क इन द मॉर्निंग. And the 6th job was to do yatna in the kitchen, and 7th job was to do सुपात्र दान की भावना. And तुम सोचो, मैं सुपात्र दान टोटल 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक कितनी बार कर पाती हूँ? 1 या 2 मिनट. That's all I used to do. और वो जो यत्ना है मैं कितनी देर कर पाती थी? थोड़ा सा. So what I did was I increased my time. I started getting up early morning and kept on working till 8 o'clock. मैंने 1 घंटा increase कर दिया अपना workload, so मैं slow motion में काम करती हूँ, right? Slow motion में काम करने से I can do more focused jobs, okay? And you take help if you want. If मेरे घर कोई गेस्ट आ रहा होता है
तो उस दिन तो यतना को तो मैं उठा के साइड में रख देती हूँ. देन आई एम नॉट थिंकिंग यतना कि कम गैस यूज करूँ और ढक दूं और यू नो तवा गर्म है, और आई एम नॉट डूइंग यतना. ट्रस्ट मी, गेस्ट आते हैं तो माय यतना इज द मोस्ट हिट, सुपात्रदान इज द मोस्ट हिट. So all I'm saying is increase the amount of time if you think how you can not multitask, decrease the multitasking. Are you clear? Okay. So in short, matlab, it is almost like exploitations of our senses by doing multitasking. Exploitation of our senses by doing multitasking. Yeah, it is Like, yeah, you are same that we are thinking we are doing things. या नहीं, मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया कि यदि आप your body does produce adrenaline and heightened state में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा करते हो, राइट? और जब वो काम खत्म हो जाता है तो बॉडी कुछ और सीक्रेट करके आपको नॉर्मलाइज करता है. ये आपका बॉडी बहुत सुपर ग्रेट चीज है, आई कांट टेल यू. वो पहले आपको हाइटन स्टेट में लाके बहुत अच्छा काम करवाएगा, यू विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल, और आपको बाद में कुछ और केमिकल रिलीज करके उसको यू नो स्लो डाउन करके बड़ा अच्छे से करेगा. बट विथ सो मच पंपिंग ऑफ juices and मतलब some things are needed, some मतलब जो excessive unnecessary जो secretion होता है ना बॉडी के अंदर, which only messes up the quick. Whether you call it exploitation to a certain extent is good, but it should not harm your body. That's what I'm telling you. Okay? Use healthy ways to relax your system if your job requirements are to multitask. Okay? Please mute yourself. Okay. Anybody? Any more questions? So मैं Ashut Nishit पे I'm going. So I just want to ask, so we should start training our children from now only. Yeah, why are you not? Why are you not? Aren't you training them from the day you're born? कितनी बार ट्रेन करते हो? बेटा ये खा लो, बेटा टाइम हो गया सो जाओ, कितना ट्रेन करते हो? But you should be training them for all these how to think also. आगे के लिए हम नहीं करते ना कि जैसे तुम बड़े, अगर तुम बड़े हो गए, you may find somebody attractive, you may so should we start all that like when they are like 10 years and It depends on how you take it, but you have to start the conversation. You have to start the conversation because see, यदि बड़े लोग बात नहीं करेंगे ना तो बच्चे को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए. वो बच्चा तुमसे बड़ों से नहीं लेगा ना तो अपने पीयर लोगों से ले, पीयर मतलब सेम ग्रुप के एज ग्रुप के लोगों से लेगा. और जब उनसे लेगा ना तो वो दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो उतने ही डफर होते हैं जितने वो लोग खुद डफर होते हैं. So aren't we I should right if we are starting बातें जो रहती है किसी का प्लीज म्यूट चेक करना ना. द पीपल हु आर नॉट देयर प्लीज म्यूट योरसेल्फ. या व्हाट आर यू सेइंग अगेन? Already when you start talking about all this, अभी वो लोग पहुंचे नहीं है स्टेज में where they start liking somebody and all that. Yeah. So we like already pushing them towards that angle. No, they will tell you, I don't want to talk about boys, I don't want to talk about girls. This is how their reactions are going to be. Boys, girls, this is how they'll go. And after some days, they will only tell you, they'll come back to you, right? Okay. And it is okay. Why can't you talk about boyfriend girlfriend issues? I also don't understand, right? Yeah. I'll give you an example. Somebody is not muted. Can you help me out? Somebody is not muted. Yeah. Srishti, please mute yourself. हाँ जी जीरा नहीं डालते. Okay. Yes, I really think that you should always train people beforehand. सम्यक तरीका पहले होता है. सम्यक तरीके से देखना आ जाएगा ना तो बच्चा गलत काम करेगा ही नहीं, उसको देखने का तरीका आ जाएगा, राइट? क्योंकि बच्चे को पता है कि इस इशू पे कैसे देखना है. उसको बेटर है कि पहले से ट्रेन करवा दो. नहीं बेटा, इस सिचुएशन में ऐसे ही करना है, ऐसे करो. वो ज्यादा रिसेप्टिव होगा. देखो, यदि वो निकाचित कर्म नहीं हुए ना तो बच्चा संभल जाएगा. हाँ, निकाचित कर्म हुए तो देन whatever you say will not affect them. But hopefully those जो बच्चे के कर्म उदय हैं is not निकाचित. वो समझ लेगा. तुम्हारे जो बोलने से वो बहुत संभल जाता है. बच्चे संभल जाते हैं. And kids, I think the kids are the best to be taught. Their slate is so clean. उनको जो सिखाओगे ना, very good imprint. वो लोग जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, हाँ आंटी बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही हूँ. आंटी आप महावीर स्वामी भगवान ने तो बिल्कुल गलत नहीं बोला, ऐसा ही तो होता है. आंटी यू आर टोटली राइट, भगवान इज टोटली राइट ऑन दिस इशू. और वही टॉपिक जब मैं बड़ों को पढ़ाती हूँ ना, बाप रे, सम्यक दर्शन वाला टॉपिक बच्चे इतना इजीली लेते हैं. यस आंटी, महावीर स्वामी भगवान इज टोटली राइट. आई मीन हाउ कैन
ऑल रिलीजन मतलब ऑल रिलीजन्स आर नॉट टॉकिंग द सेम थिंग. आंटी आई अंडरस्टैंड भगवान के पर्सपेक्टिव इज राइट, पर मान लो वो आदमी 40+ ईयर्स का होता है ना, तो उसने दूसरे धर्मों और दूसरी चीजें इतनी सीख रही होती है कि नहीं 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 हम तो ये करेंगे ही, आप कुछ भी कर लो हम इसको नहीं छोड़ेंगे. महावीर स्वामी भगवान ठीक है, वेरी ग्रेट, बट हम ये नहीं छोड़ेंगे. दिस इज हाउ दे टॉक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ दे टॉक. इट्स बच्चास आर द बेस्ट टाइम टू गिव द इंफॉर्मेशन, I think. Okay? Okay. So right now, just because I've started this topic, I'm going to go to another topic by the name of Ashrut Nishrit. Okay? Even though that is not a part of multitasking and all, but still I'm teaching you because यदि मैं मति ज्ञान सिखा रही हूँ आपको नंदी सूत्र लेवल पे, let me finish it off and I still have 5 minutes, I'll finish it off. Okay? So can you see मति ज्ञान 2 तरीके से होता है, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित. श्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार की वजह से. इसका मतलब यदि ग्लास गिरा है, चांदी और कांच का ग्लास कैसे गिरता है, कैसे भरा हुआ की आवाज आती है, कैसे खाली की आवाज आती है, मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसकी वजह से मैं उस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देती हूँ. बट व्हाट अबाउट किचन में कुछ ऐसी चीज गिरती है जो मैंने ये साउंड ही नहीं सुना, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि यार ये पतीला भी नहीं था, ग्लास भी नहीं था, चम्मच नहीं था, क्या गिरा, क्या हुआ, समझ ही नहीं आया. इसका मतलब पास्ट भव में आई हैव नथिंग, माय ब्रेन हैज नथिंग टू कंपेयर इट टू समबडी, माय आत्मा हैज नथिंग टू कंपेयर इट टू. तब मैं इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करती हूँ? मतलब यदि पास्ट का मेरे पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, हाउ डू आई डू दैट? तो अब दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग. दैट कम्स अंडर अ पार्ट ऑफ अश्रुत निश्रित. अश्रुत का मतलब होता है पूर्व भव के संस्कार मेरे में नहीं है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अश्रुत. ओके? इसमें ये जो सेकंड लाइन है ना, वैमानिक लिखा है, प्लीज इसको, ये दिस इज अ स्पेलिंग एरर, इसको काट के ना एक और लिख दो, वैनाइक. वैनाइक. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस स्पेलिंग एरर. ये अश्रुत निश्चित के नीचे औत्पातिक दिखाई दे रहा है. औत्पातिक के बाद में जो सेकंड है वैमानिक लिखा है, उसकी जगह पे लिख दीजिए वैनाइक. ओके? ओके. I'm starting with the first one. If I don't, what is औत्पातिक बुद्धि? औत्पातिक बुद्धि बीरबल की होती थी. आपने सुना होगा कि बीरबल के पास जितने भी लोग आते थे अकबर के पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेके, अकबर हैज नेवर हर्ड दोस थिंग्स. ऐसा कभी किसी ने सिखाया नहीं, पूर्व में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व नहीं की. बीरबल वुड ऑलवेज हैव द सोल्यूशन. सो औत्पातिक बुद्धि ऐसे लोगों की होती है जिसके अंदर बेसिकली पहले के कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व किए नहीं हुए होते ना, तो भी उनको पता होता है कैसे सॉल्व करना. वो बुद्धि को बोलते हैं औत्पातिक बुद्धि. ये हर जीव में होती है, थोड़ी या ज्यादा. कई लोगों को थोड़ी होती है, कई लोगों को ज्यादा होती है. डिपेंड्स ऑन द शैवक्षम. शैवक्षम मतलब कितने कर्म हटे हुए होते हैं. ओके? ओ आई फॉरगॉट टू टेल यू, श्रुत निश्चित के अंदर भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमारे ऊपर से कितने कर्म हटे हुए हैं, शैवक्षम कितना हुआ है. जैसे पत्ते का जीव है, पत्ता मतलब एकेंद्रीय जीव है, जैसे पृथ्वी, वायु एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? उनका श्रुत निश्चित में सिर्फ अवग्रह होता है. वो कहाँ यहाँ अवाय धारणा करेंगे, बेचारे की मेमोरी से कहाँ चीजें इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. उनको सिर्फ अवग्रह होता है, राइट? कि यार हमको भूख लगी है, लेट मी टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स, राइट? लेट मी टेक सनलाइट, लेट मी मेक फूड, क्योंकि हमको भूख लगी है. तो पत्ते का जीव यही कर रहा है, उसको पेन हो रही है, तो उसको अवग्रह तक होता है, ज्यादा नहीं होता है. ज्यादा मतलब ज्यादा आगे फ्यूचर नहीं होता है, क्योंकि उनका इतना ही क्षयक्षम होता है. तो अवग्रह को संज्ञा भी बोलते हैं. संज्ञा मतलब वो 4 तरीके की संज्ञा होती है ना, जो पौधों में भी होती है, केंद्रीय जीवों में होती है. जैसे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा एंड परिग्रह संज्ञा. ये 4 संज्ञा पत्तों में भी होती है, आहार संज्ञा, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अवग्रह. सो इट ऑल डिपेंड्स हमारा क्षयोक्षम कितना है. क्षयोक्षम मतलब कर्म हमारे ऊपर से कितने हटे हुए हैं. तो जो कि हम पंचेंद्रिय हैं, वो भी संघी है. हमारा अवग्रह या वाय धारणा ज्यादा एडवांस लेवल पे है, राइट? बट स्काई इज द लिमिट. ओके? आई टोल्ड यू, अनंत जीवों पे कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट. ओके? सो सेम गोज विद औत्पातिक बुद्धि. जिसका ज्यादा क्षयोक्षम होगा वो ज्यादा बीरबल की तरह सुपर इंटेलिजेंट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी उसकी. मतलब मति ज्ञान में मैंने वर्ड्स लिखे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रिएक्टिव पावर्स एंड एप्टीट्यूड, सब कुछ लिखा था. ये औत्पातिक बुद्धि के अंदर आता है. आर यू क्लियर? द नेक्स्ट इज वैनाइक. वैनाइक का मतलब होता है विनय से प्राप्त बुद्धि. द मोर आई डू विनय, द मोर आई बिकम पात्र. पात्र का मतलब होता है, एक लाइन मैं आपको बोल रही हूं,
कि जब हम पात्र बनते, जब हम विनय करते हैं तो हम पात्र बनते हैं। पात्र बनते हैं तो हमको कुछ चीज मिल सकती है, पर हम विनय नहीं करेंगे तो हम पात्र नहीं बनेंगे। पात्र नहीं बनेंगे तो हमको कुछ मिलेगी नहीं। रिमेंबर, आई कीप टेलिंग यू, व्हेन यू कम टू दिस क्लास, प्लीज डू समायक, प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स, राइट? बिकॉज आप विनय करते हो 5 पदों का या धर्म का, तो आपको, आपके ऊपर से ज्ञानावर्णीकरण हटते हैं और आपको ज्ञान मिल जाता है। I will take this application of Mati Shrut in the next class, okay? So उसमें Vinay की I'm going to take it as a major form, okay? Next is but I think we are already 3:30. Let us do Ashrut Nishrit next time. Is that okay? I think we should wind up the class. I think I won't be able to finish Karmic Parinamik. I won't be able to do justice to those two. So let's do that, okay? Is there any questions on Shrut Nishrit? Then I think I better do it. Or Tatik or Vinay ki ko chhod do abhi. No. I just want to ask that do you take classes for kids also? Online? No, there is no right now. There's nothing going on. Right now, I'm not doing. Okay. Yeah. But whatever I'm teaching right now, I mean, I'm treating you also like kids only. I'm not treating you like ready for Kanchan Auntie's class. I mean, I'm treating you as if you're a kid, right? A KG se main padha rahi hu. So whatever I'm teaching this, a kid can understand. All my kids, I mean, whenever I had kids, all these, my kids knows this Mati Shrut and Avagra Yahavai Dharana, all my kids know, right? So whatever I'm teaching you, you can teach the same to your children. Okay. In fact, if they sit in this class, they'll understand everything better than you. I'm telling you, they'll learn better than you because unka na ideas have not yet been fixed. They'll understand it better. In fact, you sit with your child. That child will have more vinay, more, yes, Mahavir Swami Bhagavan is super great, more than what you can feel. I'm telling you. So I teach the same stuff to kids also. I don't teach separate. I am doing only elementary level class. I never do an advanced level class. For advanced level class, you'll have to go to Kanchan Auntie only. I don't teach all those jargons and everything. I just do applications. Okay? So I think if you have a kid who is 10 class, can sit in this class, can understand it far better than you. I'm telling you. Okay? And I'm treating you also like a KG kid. I'm treating you like that. See the way I've taught you? Isn't it easy? I've taught you more with examples and giving you examples. Application is with me. Okay? Yeah. Okay. So let's wind up the class. And I hope in the next class we'll see Ashrut Nishrit and the applications related to that. Okay? Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Didn't you need to wind up everything?